Good afternoon, audience. A very good afternoon from here, from Dallas, Texas, and I hope you're doing awesome. What's the objective of today's class? We'll be doing ACCA SBL March 2020. Okay. Well, I think I need probably 3 meetings. In today's meeting, we'll be just discussing the question paper. So, SIP question paper, we'll talk about question paper. And then in the next 2 meetings, we'll talk about answers. Obviously, it's a professional paper, very professional paper. यानी मैं कहता हूँ out of 16, क्योंकि there are total 16 paper in ACCA, जिसमें this paper has a total different class. इसका है ना, there is no comparison. Not even with the senior paper, जो P7 और P6, उसके साथ भी कोई मैच नहीं है. ठीक है ना, ये अपनी नौयत का it's totally different thing, totally unique thing. सही है ना? और extremely subjective and very professional paper. ठीक है ना, very professional. And it looks like I'm reading in HBR or Harvard Business Review, or maybe I'm reading a technical article in Economist. ऐसा ही लगता है. हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई वॉल स्ट्रीट में बैठा हुआ हूँ या मैं कोई फॉर्च्यून मैगजीन में क्या पढ़ रहा हूँ. It doesn't look like a exam paper. See, it's not लगता नहीं है. ठीक है, it looks like a very real life, very real life. ऐसा कि कभी वो CEO की पिक्चर भी डाल देते हैं जो हमने कभी नहीं इससे पहले देखी थी in examination. ठीक है, very professional. And when I'm talking about the today's class, which I'm talking about the question paper, so don't expect this thing. 2 things. The first, that I'm gonna read it. अगर मैंने सिर्फ रीडिंग ही करनी है तो that's the traditional way. सही ना, ये तो कोई बेसिक पेपर होता तो आप सोचें I'll be doing word to word नहीं. हमने कुछ ऐसी बात करनी है which is a value creation, which is a value addition, कि मैं अपना opinion उसमें दूं. सही ना, what I think about this paper and plus some tips and techniques, some tricks. क्योंकि passing examination is an art. ये एक art है, ये एक टेक्निक है. किस तरीके से getting a 50 marks, सही ना, क्योंकि once again 50 is 100 and 49 is 0 for me. ठीक है, अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई कि मैं आपके साथ कोई रीडिंग नहीं करने वाला. Although हम पूरा केस डिस्कस करेंगे, but not word to word reading. Second, जो कुछ मैं आपसे बात करूंगा, that's solely my opinion. I am always welcome for feedback. So, if you have any opinion, if you have anything, you can always share with me. If something is good, you have read somewhere with any teacher, I'm open. ठीक है, मैं जो बात करूंगा, let's say I'll talk about the reading sequence. तो ये मेरा एक अपना opinion है, based on my experience, this subject and other relevant subject of business management. और मेरा एक अपना vast rich experience है इन subjects का, case studies का और ये सारी चीजों का, और एक अपना traveling से, learning से और इन सब चीजों से global experience भी है, तो वो चीज भी मैं आपके साथ share करता रहूंगा. तो ये मेरा एक अपना opinion होगा. Different people have different style and different people have different comfort level and they have the different size. सही है ना, in reading and writing, in studying even. सही है ना, जैसे मिसाल के तौर पे I am a morning person. सही ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम सुबह 5 बजे 6 बजे और इस तरह 7 बजे होता है ना, the sun goes up and you up, तो इससे ज्यादा productive कुछ नहीं. But there are people who are very productive at night time. वो पढ़ते रात में. तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है क्या है, I don't know. लेकिन different people have different things. ये बात. Let's look here. अच्छा, सबसे पहले let me share my screen now. There you go. और मैंने कुछ 1-2 बातें ताकि स्टार्टिंग में लिख दी, तो आपके साथ डिस्कस. The first thing is smart reading. Obviously, you have just one question which comprises of 10,000 words. और ऐसा कोई, मैंने कहा ना, कोई मैच नहीं है. आज तक जो हमने केस स्टडीज की थी, whether it's auditing या whatever, सही है. अच्छा, आप लोग बहुत कंफर्टेबल होकर बैठे. Maybe I need 1 hour or 1 hour 25 minutes. इस तरह तो मुझे चाहिए होगा. But every minute will create a value. I'll try. सही है ना, तो आप you can have a coffee or tea or whatever. सही है ना, comfortable होकर बैठे. Okay, let's look here. Smart reading is very important. It's not only about reading. कि हम बोलेंगे नहीं जी मुझे सिर्फ रीड करना है, मुझे स्मार्ट रीडिंग करनी है, क्योंकि पेपर बड़ा है. There's so many requirements, सही है ना, words, और फिर एक प्रेशर भी ना, एक स्टीरियोटाइपिंग है ना, कि जो बड़ा होगा तो उससे अमूमन डर ही लगता है, उससे घबराहट ही होती है. जबकि हमें ये नहीं पता कि समटाइम एक एमसीक्यू इतना टेक्निकल होता है कि वो आपका नाम पूछ लेता है. कहने को 2 वर्ड का होता है, लेकिन बट एमसीक्यू इज वेरी टेक्निकल. लेकिन एक अमूमन सोची होती है कि व्हेन इट्स अ बिग क्वेश्चन, ऑब्वियसली वो एक प्रेशर वैसे ही होता है, वैसे ही हावी होता है. ये इट्स अ ह्यूमन थिंग.
ठीक है ना, कि यूएस का वीजा लेने जाए तो वो इंटरव्यू में वैसे ही बड़ा बंदा परेशान होता है, या मे बी सम मल्टीनेशनल कंपनी एंड यू हैव एन इंटरव्यू एंड इट्स फर्स्ट टाइम, तो एक वैसे ही प्रेशर होता है यार, सही ना, जबकि हो सकता है कुछ भी ना, यू गो जस्ट टॉक नॉर्मल एंड यू गेट इट, बट सम टाइम यू नो यू हैव प्रेशर, दैट्स थिंग। तो एसबीएल में भी यही होता है कि एक प्रेशर होता है, फिर लोगों की सुनी सुनाई बातें समझो। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो टाइम वगैरह ये चीजों को मैनेज करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important that you have to be a smart reader, आपको स्मार्ट रीडिंग करनी है। स्मार्ट रीडिंग से मुराद ये है कि जो काम 15 मिनट में हो सकता है, यानी स्मार्ट से मुराद, let me write here, should be efficient, and must be effective, दोनों चीजें मैंने लिख दी, efficient भी हो और effective भी हो। effective से मुराद ये है कि obviously when you read something, when you read a story, when you look at the movie, watch the movie, effective से मुराद क्या है कि उसका पूरा प्लेजर ले सके। इफेक्टिव से मुराद ये कि उसको पूरी तरह उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। भाई आप रीडिंग क्यों करते हो, क्वेश्चन पेपर को क्यों रीड करते हो, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड इट, सो दैट यू कैन आंसर इट। अगर एक बंदा बोले कि यार मैंने रीडिंग तो कर ली, आई डिडंट केयर एनीथिंग, इट मींस इट वाज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। We need both, we need a combo, but that's why I'm saying it should be smart reader, कि आप जो पढ़ते जाओ वो तेज भी पढ़ो, यानी in least resources you get the maximum thing, maximum objective, maximum return you get it। सही है, ये बात को जरा समझे। तो इसलिए मैंने कहा स्मार्ट रीडिंग, मकसद भी अचीव हो, मतलब भी समझ आ जाए, इंटरप्रिटेशन भी उसकी हो जाए और कम वक्त में हो जाए, ठीक है। उसके लिए जो अमूमन नॉर्मल केस स्टडीज, जो ट्रेडिशनल केस स्टडीज हम करते थे, तो हम बच्चों से क्या कहते हैं, हम बच्चों से अमूमन हम यही कहते हैं ना, दिस इज द यूनिवर्सल टेक्निक, कि व्हेन यू डूइंग अ केस स्टडी, जब आप केस स्टडी कर रहे हो, तो आप जब आप केस स्टडी कर रहे हो तो आप क्या करते हो, यू डोंट रीड द केस फर्स्ट, यू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, क्यों रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, सो दैट व्हेन यू रीडिंग द केस यू हैव अ डायरेक्शन इन योर माइंड, मेक सेंस, आपके पास डायरेक्शन हो। यार पता ना पूरा केस पढ़ लिया, बाद में पता चला कि उसने तो शॉर्ट पूछा था, तो ठीक है केस तो पढ़ना ही था इन एनी केस, लेकिन पता ये चला कि अगर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते कि डू अप्लाई शॉर्ट एनालिसिस इन द अबव केस, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पुराने केसेस की, ट्रेडिशनल केसेस की, नॉट टॉकिंग अबाउट एसपीएल राइट नाउ। सो तो हम अमूमन बच्चे से क्या कहते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो एंड देन यू गो एंड रीड द केस, सो दैट यू हैव समथिंग, यू हैव अ डायरेक्शन इन योर माइंड, एंड व्हेन यू विल बी रीडिंग द केस you will be getting the point as well, क्योंकि दिमाग उस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा कि यार मुझे आज टेक्सटाइल मॉडल अप्लाई करना है, maybe I'm talking about the 4 or 5 forces, the e-marketing, the process, the project, risk management, whatever, सही ना। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ने से, तो ये एक स्मार्ट रीडिंग, दिस इज स्मार्ट रीडिंग। मतलब क्या होता, पहले पूरा केस पढ़ा, then you read the requirement and you read it again। यहाँ पर क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली तो एक में वन गो में आपने दो काम कर लिए, दैट मेक सेंस, सही, यानी आप साथ साथ लिखते जा रहे हो, यार ये स्ट्रेंथ मिली, ये स्ट्रेंथ मिली, दिस इज द वीकनेस, दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज थ्रेट, ओके। अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मसला ये है, एंड दिस इज सोनली माय ओपिनियन व्हेन इट्स अबाउट द रीडिंग सीक्वेंस, रीडिंग सीक्वेंस। अब देखिए वक्त के साथ हमारे ओपिनियन भी चेंज होते हैं, हम भी सीख रहे होते हैं, आप भी सीख रहे होते हैं। देखिए रीडिंग सीक्वेंस जो मैं एसबीएल के लिए कहता हूँ, मैं एसबीएल की बात करूँ, कुछ बच्चे ये करते हैं, एंड इट्स टोटली योर चॉइस, आई एम गिविंग यू माय एक्सपर्ट ओपिनियन। कुछ बच्चे ये करते हैं, देखो इसमें 3 एरियाज हैं एसबीएल के अंदर, आपको क्वेश्चन पेपर में यू विल सी 3 सेक्शंस। एक सेक्शन आपको नजर आता है, दैट्स द फर्स्ट पेज, सही ना, दिस इज द फर्स्ट पेज, एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट पेज, आई विल टॉक ऑन दिस। दूसरा जो एरिया नजर आता है, मे बी लेट्स से 2 to 3 पेजेस, ये क्या होते हैं, these are requirements, okay, and then you have let's say 7 to 8 pages, sometimes 6 to 7 pages, 5 to 6, 7 to 8, whatever, ये क्या है, additional info, okay, additional info, right, additional information। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो बोलते हैं यार हम जो है पहले पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, यानी 7 to 8 पेजेस पूरे पढ़ेंगे पहले, एंड देन विल गो ऑन द रिक्वायरमेंट एंड वी डू दिस। कुछ का सीक्वेंस ये होता है कि बोलते हैं पहले फर्स्ट पेज पढ़ेंगे और 7 to 8 पेजेस पढ़ेंगे एंड देन विल गो ऑन द रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे होते हैं उनके दिमाग में वही वाली बात होती है, नहीं पहले सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, एंड देन विल डू द फर्स्ट पेज एंड 7 to 8 पेजेस। मैं आपसे एक बात आता हूँ, देखिए जरा गौर से सुनिए, जरा तवज्जो से, बात ये है जरा गौर से,
मुझे ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है एंड आई हैव टू बी स्मार्ट, आई वांट टू डू बोथ थिंग्स। सही है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ेंगे ना, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट फिर कैसी होती है, देखो 2 to 3 पेजेस रिक्वायरमेंट के सिर्फ, यानी सोचे रिक्वायरमेंट के अंदर भी बड़ी बातचीत है, यानी वो तमहीद बांधता है। You talk about, it's not like define and explain. You never see those action words in SBL. No instruction word like this, define, explain or describe or what. ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, नहीं मजा आएगा। हो सकता है आपको बहुत सी बातें नहीं समझ आए। SBL के लिए my opinion is first you read the first page must, क्योंकि पहला पेज इसका ऐसा होता है जो आपको पूरे अगले 9-10 पेजेस का आइडिया दे देता है। Why? Tells you about the name of the organization, tells you about the product of the organization, the industry of the organization। सुने जरा गौर से, इंडस्ट्री बता देता है, आपको इदारे का साइज बता देता है, आपको इदारे की एज बता देता है, आपको इदारे का स्ट्रक्चर बता देता है कि इज इट अ सोल प्रोप्राइटर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है या एडहोक्रेसी है या व्हाट, साइज, एज, ये आपको उसका कंपटीशन बता देता है, ये आपको उसके मोटे रिस्क बता देता है, समटाइम एक थोड़ा सा आइडिया बता देता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन। सही है ना, कि क्या इसके अंदर पहला और कोई मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, कोई डिवोर्स हुई है, क्या चीज है, वो बता देता है। फिर आपको पता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता देता है, साइज, कल्चर, नाम, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, थोड़ा सा प्लान भी बता देता है, इफ दे हैव एनी ग्रोथ प्लान और समथिंग, उसके बारे में एक आइडिया हो जाता है, अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द सेगमेंट। और मजे की बात ये कि उसी फर्स्ट पेज पे इन 7 to 8 पेजेस का मैं कहूंगा नाम मौजूद होता है, जस्ट द नेम, जस्ट द इंट्रोडक्शन। क्या आपको पता होता है कि यार ये अगले जो 7 to 8 पेजेस हैं जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अगर एक लेमैन है वो बोलते हैं यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, तो अगर फर्स्ट पेज पे इफ यू लुक एट द इंट्रोडक्शन उसमें लिखा हो, या इफ यू लुक एट द टेबल उसमें लिखा हो ऑन पेज नंबर 1 you'll have income statement, on page number 2 you'll have balance sheet and then cash flow, then statement of changes in equity and then notes to the account, माना आगे जाके उसकी डिटेल है सब उन पेजेस पे, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपको पता चल जाता है कि आगे और आई एम गोना रीड। तो इधर भी ऐसा ही होता है कि ये आपको बता देता है कि ऑन फर्स्ट पेज विल हैव अ बोर्ड मीटिंग लेट्स से, तो आपको पता हो जाता है कि यार एक इंटरनल गपशप भी होगी इसमें। कोई जैसे इस अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो शुरू में ही अंदाजा हो गया है देख के कि भाई इंडस्ट्री कौन सी है, आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे ही ना कंसल्टेंसी सर्विसेज ये दी जा रही है। जो उसके एक्सट्रैक्ट को देख के आपको अंदाजा हुआ कि इसमें बोर्ड मीटिंग भी होगी, इसमें एक मैगजीन है बिजनेस टुमारो, आई थिंक मैं भी देख लेता हूँ बिजनेस टुमारो या मैगजीन का व्हाटएवर द नेम इज, उसने भी कोई बात की, अपना आर्टिकल लिखा है अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इन्होंने अपना सर्वे भी किया है टू देयर कंज्यूमर, टू देयर कस्टमर्स, उनके साथ सर्वे भी किया है। इस लोग क्या, मैं जरा एक मिनट आपके सामने पढ़ ही लूँ मैं इसको। देखिए इसमें मुझे एक सबसे मजे की बात पता है क्या चल गई, मुझे इंडस्ट्री प्रोडक्ट सब पता चल गई। इवन आई इन ऑन द फर्स्ट पेज आई अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन, द सीईओ एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट द नेम, लेकिन मुझे उनका बैकग्राउंड पता चल गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, डू दे हैव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनका क्या रोल है, ये तक उसने बता दिया कि कुछ जो इसमें ओरिजिनल फाउंडर्स हैं। देखो दिमाग में फर्स्ट पेज आपको एक ऐसी पिक्चर दिमाग में दे रहा है कि you going to enter in a party, और आपको सब बता रहा है कि जैसे होता है ना पार्टी में एंटर होने के लिए व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्रेस कोड, क्या होगा, कैसा म्यूजिक होगा, व्हाट्स द मेन्यू, सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज में आपको पूरा एक वो जो कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, आपको पूरे एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है अबाउट द केस। सही। और अगर इसके बगैर आप रिक्वायरमेंट करके देखें, लेट्स टेस्ट इट, इसको टेस्ट करें, कोई एक केस उठाएं 2018 दिसंबर 17 कोई भी 19 ये उठाएं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें और फिर फर्स्ट पेज पढ़ें, यू विल बी ब्लैंक, आप बोलोगे यार मैंने आई जस्ट वेस्टेड माय 15-20 मिनट्स। यू रीड द फर्स्ट पेज, ओके रीड द फर्स्ट पेज फर्स्ट, तो जैसे कहते हैं ना स्टीफन का भी कहता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली बात। देखो अब इसके अंदर इसने आपको मजे की बात क्या बताई, या द फॉलोइंग एग्जिबिट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द केस स्टडी। तो इस पहले पेज को पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि इन एग्जिबिट 1 I'll have a board meeting, यानी इसका मतलब मैं बिग सी पोजीशन के लोग इसमें बात करेंगे, द इंटरनल स्टेकहोल्डर्स, समरी ऑफ मियोबेड क्लाइंट अप्रोच। कितने बच्चों ने बोला सर आपने मियोबेड पढ़ाया नहीं, मियोबेड एक मिमोनिक है, जब आप आगे जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा मियोबेड तो एक मिमोनिक है,
सही है ना। तो ये बिजनेस टुमारो मैगजीन, इसका मतलब यू गेट एन आइडिया कि आई विल बी लुकिंग एट वन एक्सटर्नल पीस ऑफ पेपर एज वेल, सही है ना, बिजनेस टुमारो मैगजीन। ब्लॉग, एक ब्लॉग ऑन आईटी कंसल्टेंसी सेक्टर और बिजनेस टुमारो मैगजीन वेबसाइट, इसका मतलब मुझे इसके अंदर एक पूरा ब्लॉग भी पढ़ना होगा। मेकिंग अप योर माइंड, सही है, ये आपको ऐसे आइडियाज दे रहा है कि आप, ठीक है, पहला पेज ही आपको बता रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लाइंट सर्वे, इट मींस दे मस्ट हैव डन सम सर्वे आल्सो कस्टमर्स का उनका, एंड दे विल हैव फीडबैक, तो ये भी दिमाग में आ गया। Discussion of threatening letter about TT4U. TT4U is the name of the business, name of the company. Largest client, Rex Investment. इसका मतलब there must be a problem. एक problem भी है इनके किसी client के साथ और कोई threatening letter और ये चीजें भी आएंगी. Okay, no problem. Appraisal of cloud services. इसका मतलब आपका F9 और P4 वाला भी एरिया नजर आएगा. You'll have NPV, IRR, ARR. दिमाग में तो कितनी चीजें फर्स्ट पेज ने ही आपको बता दी. डोंट स्किप फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे स्किप नहीं करना. इस सीक्वेंस में मैं ये कहता हूं कि भाई आप पहले फर्स्ट पेज पढ़ें, 10 पेजेस का आइडिया ले लें. मजे की बात देखें, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं इसी फर्स्ट पेज पे, 2 years ago the company achieved a listing on its national stock exchange. कितनी चीजें इसने बता दी आपको कि यार ये स्टॉक मार्केट पे भी जा रहे हैं. थोड़ा सा आगे जाके बताया, some of these external shareholders have indicated that they would like to see the company achieve a full listing on the main national stock exchange within 3 years. Oh my God, यानी they have some stakeholder pressure as well. हाँ, इसी के अंदर अगर देखें the following exhibits से ऊपर, TT4U's board has decided to engage an external consultancy firm Stubfield to help in evaluating. इसका मतलब not only the board of directors, एक किरदार इसके अंदर एक कंसल्टेंसी फर्म का भी होगा. मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फर्स्ट पेज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, हर चीज का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मिल जाता है. तो डोंट गो विद दैट ट्रेडिशनल अप्रोच कि मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा. एकदम आप ये फर्स्ट पेज पढ़ लोगे, रिक्वायरमेंट पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. एंड देन गो विद ऑल द एक्सिबिट्स. सही है. तो अब क्या हो गया भाई, पहली बात फर्स्ट पेज, सेकंड बात रिक्वायरमेंट. अच्छा, रिक्वायरमेंट से आपको पता क्या बेनिफिट होगा, रिक्वायरमेंट से दिमाग को डायरेक्शन मिल जाएगा. इससे क्या मिल गया कि आपको फर्स्ट पेज से यू गेट एन आइडिया कि व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, सही है ना. लेकिन रिक्वायरमेंट से क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आज का पेपर निकला या नहीं निकला. योर कॉन्सेप्ट, द बैक ऑफ द माइंड कॉन्सेप्ट will come up. Say, oh, I discussed in class e-marketing. इन्होंने एक सवाल e-marketing पे पूछा. Okay, they talk about risk. सही है, यार risk management पे बात हो जाएगी. Oh yes, they talking about the governance structure, change in board membership. Corporate governance फौरन दिमाग में वर्क करने लगेगा. Audit committee, non-executive director, remuneration committee, all these things, importance of corporate governance, वो दिमाग में वर्क करने लगेगा. देखो ना, रिक्वायरमेंट पढ़ने से आप डायरेक्शन मिलना शुरू होगा, ठीक है ये. लेकिन वो अभी आप फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इतनी आसान नहीं होती विदाउट द फर्स्ट पेज, क्योंकि उसको उसने बड़ी तमहीद बांधी होती है. आई एम कमिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है. खैर, मैंने यहाँ क्या बात करनी थी आपके साथ, तो यस, दिस इज द सीक्वेंस व्हिच आई थिंक you should go for it. ठीक है. देखो, एक बात तो मैं मानता हूँ कि केस स्टडी और नॉलेज बेस्ड में फर्क होता है कि, और जितनी बड़ी केस स्टडी हो, केस स्टडी में इनिशियली इट टेक्स मोर टाइम, आपका टाइम वो ज्यादा ले रही होती है, एंड यू गेट लेस रेवेन्यू कह रहा हूँ या नंबर्स कह रहा हूँ या मार्क्स कह रहा हूँ, ठीक है ना. टाइम ज्यादा लग रहा होता है. लेट्स से अभी हमने जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, when you reading it you actually don't get the marks, लेकिन it is important. जबकि नॉलेज बेस्ड सवाल में क्या होता है, आप पहले मिनट से ही मार्क्स कलेक्ट करना शुरू कर देते. सिनेरियो बेस्ड में द थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है ना. वक्त के साथ साथ स्टोरी याद होने लगती है, सही है ना. एक दफा पढ़ते हो, व्हेन यू एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द केस, दूसरी रिक्वायरमेंट पे फिर आप बोलते हो, अरे ये रैक्स कौन था, अरे ये कौन था, स्टबफील्ड कौन था, हु वाज द चेयरमैन. तो आपको बार बार देखना पड़ता है. आई अंडरस्टैंड. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, यू फैमिलियर विद द केस, यू फैमिलियर विद द स्टोरी, उसके साथ आपका केस और स्टोरी के साथ आप फैमिलियर होने लगते हो, फिर आखिरी रिक्वायरमेंट ज्यादा तेज होने लगती है, स्पेशली आफ्टर 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द केस. 1.5-2 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या आखिरी का जो घंटा होता है, यू मोर स्मार्ट, यू स्पेंड लेस टाइम, यू गेट मोर नंबर्स. हाँ, ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, तो ये चीज ठीक है. अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात हुई है तो देखिए, स्मार्ट रीडिंग के लिए रीडिंग की हैबिट होना बहुत जरूरी है, रीडिंग की आदत होना बहुत जरूरी है. When you studying SBL, let's say you do it for 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, whatever, to start reading more articles. more reading habit भी बहुत जरूरी है. और once again, reading वो करें which is important, सही है ना. Let's say about the COVID thing, how the COVID affecting particular industries, airline industry, American industry को, Europe industry को किस तरह उसने हिट किया, अंडर डेवलप्ड नेशन को, चाइना को, इनको कैसे हिट किया. तो रीडिंग की आदत भी इससे क्लियर होगी. और आपको पता ही है SBL के पेपर में always you get what? You always get
रियल लाइफ सिनेरियो, सही ना। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली दिस कोविड थिंग एंड ऑल। तो अब ये बात को भी दिमाग में रखें कि रीडिंग की आदत भी होनी चाहिए। अगर जिस बंदे की रीडिंग की हैबिट नहीं है तो वो जल्दी थक जाएगा या जल्दी मे बी लूज कंसंट्रेशन, सीधी बात है कि वो कंसंट्रेशन को नहीं पिक कर पाएगा, सही ना। वही वाली आदत की बात, यार कितनी आदत है इस बंदे, कितना स्टेमिना इसका रनिंग का, कितना स्टेमिना इसका रीडिंग का, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्टेमिना, सही ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज और वर्क, इट्स अबाउट रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। हर चीज एक स्टेमिना मांगती है। ये बोलना, इसके लिए भी तो एक स्टेमिना चाहिए ना। ये इतने वर्ड्स पर मिनट जो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो अभी तो बुजुर्गी है, जब जवानी थी तो पता नहीं। अभी मैं कभी और सोचता हूँ कि I used to speak like continuous 12 hours, बड़े वर्कशॉप ऐसे कर रहा था 12 घंटे, तो वो स्टेमिना था। तो वक्त के साथ स्टेमिना कम और ज्यादा करते प्रैक्टिस कर, नो इश्यूज। लेट्स लुक हियर। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, आपको ये तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया, ओके। नाउ हाउ अबाउट राइटिंग पॉइंट्स बिफोर एग्जीक्यूशन। ये एक मैं अच्छे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए, वेदर यू डूइंग अ कंप्यूटर बेस्ड थिंग, रिमोट एग्जामिनेशन या व्हाटएवर, और या फिर अगर आप पेपर पे कर रहे हैं, देखिए एक काम ये होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉर्ट एनालिसिस, सही है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस केस स्टडी जिसमें पहली रिक्वायरमेंट रिस्क पे। एक तरीका तो ये है कि आपने रीड किया और उसके बाद जब आप लिखने बैठे ना, तो लिखने बैठे जब व्हेन यू अटेम्प्टिंग द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि रिस्क पे है, तो उस टाइम आप फिर से सोच भी रहे हो और लिख भी रहे हो, दो चीजें एक साथ कर रहे हो। क्यों ना मैं आपको एक टेक्निक बताऊं कि जब आप एक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना है तो पहले उसके पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि जब एक दफा पॉइंट्स लिख लोगे ना, लेट्स से सॉर्ट एनालिसिस है या रिस्क है, लेट्स से यू हाइलाइटेड 1 2 3 4 5 रिस्क, वो आपने लिख दिए। आई एम नॉट सेइंग राइट द होल थिंग, वो इलैबोरेट भी कर देना, जस्ट राइट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स जो भी आपके दिमाग में है वो आपने लिख दिए। एक दफा आपने लिख दिए ना रफ पेपर पे, जो भी व्हाटएवर इज अलाउड इन योर एग्जामिनेशन, सही ना, आप जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख दो या व्हाटएवर इफ रिमोट एग्जामिनेशन। तो अब जब वंस यू आर डन विद योर रिस्क पॉइंट्स, तो इसका मतलब आपने थिंकिंग प्रोसेस करना। अब when you writing your examination, जब आप लिखने बैठोगे, you don't need to think it, सही, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। पहला पॉइंट उठाया, जस्ट इलैबोरेट, दूसरा पॉइंट इलैबोरेट, थर्ड इलैबोरेट। अगर मैं रिस्क पहले से सोच चुका हूँ और मैं लिख चुका हूँ तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, उठाया इलैबोरेट किया। अगर मैंने वो सोचे नहीं है तो व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग माय आंसर, उस टाइम दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, सोचना भी पड़ेगा और ये। तो दैट्स वंस अगेन वन ऑफ माय ओपिनियन, सही, वन ऑफ माय एक्सपर्ट ओपिनियन। If you feel comfortable doing while writing and you're thinking and you're writing, it's your choice, no pressure, it's all democracy. This is just one thing, ये मैंने आपको उसका बेनिफिट बता दिया कि थिंकिंग को अलग कर लो और एग्जीक्यूशन को अलग कर लो। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट लिखा ना, पॉजिटिव साइड ऑफ एसबीएल, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आप एसबीएल अटेम्प्ट कर रहे हैं या एसबीएल प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाटएवर, देखो एक केस है नो रटाफिकेशन। मजे की बात है, जरा सोचे इतने बड़े केस, इतने बड़े कोर्स की अगर रटाफिकेशन होती, डिफाइन, एक्सप्लेन, ब्रीफ, कितनी याद करना पड़ता। टेक्स्ट की डेफिनेशन होती, आईएएस आईएफआरएस की डेफिनेशन होती। इवन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर्स, never ask about write down only specific Michael Porter Diamond or Porter 5 forces, वो आपको डायरेक्ट कहता है कि it's up to your choice। उसने कभी नहीं बोला कि apply any particular writer। जो इससे पहले पेपर होता था ना P3, which replaced actually SBL, SBL actually replaced P3, I'm sorry। P3 जो पेपर होता था, उस पेपर में वो बोलता था कि no, okay, it's must you do this thing, okay, या any appropriate case था, लेकिन फिर भी वो बोलता था कि राइटर्स अमूमन, लेकिन इसमें तो कुछ भी खुला मैदान है, डू इट। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। एक केस, जरा सोचे, वही हर पेपर की तरह 4 केस होते हैं, 5 केस होते हैं, नो मैटर आपको चॉइस भी होती, क्या फायदा। हर केस की अलग इंडस्ट्री, अलग प्रोडक्ट, यानी दिमाग 5 हिस्सों में बढ़ता है यार। एक पहले केस में लेट्स टॉक अबाउट एयरलाइन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी, टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट, द फूड इंडस्ट्री, द होटल। ओह माय गॉड, इंडस्ट्री का कंपटीशन अलग, इस कंपटीशन अलग, इस केस का कंपटीशन अलग, देन 5 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट। इसमें क्या है, कितनी पॉजिटिव साइड है। एक स्टोरी, एक दफा स्ट्रक्चर समझ जाओ, एक दफा उसका कंपटीशन समझ जाओ, एक दफा उसकी इंडस्ट्री को समझ जाओ, सेगमेंट, प्रोडक्ट, देयर इज ग्रोथ, 4 किरदार हैं, उन 4 किरदारों को समझ, दैट्स इट। थिंक इजी, थिंक पॉजिटिव अबाउट एसबीएल। इतना अच्छा पेपर, कोई रटाफिकेशन नहीं। बी अ कॉन्फिडेंट कंसल्टेंट, ऐसे कि अपनी ऑफिस में जाकर बैठो एंड you have a client, you sit with your client, listen to your client, give your opinion, subject, no absolute answer, सब्जेक्टिविटी पे बात करें। खुद आपका एग्जामिनर ये कहता है कि ये हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हम जो दे रहे हैं, आप कुछ और पॉइंट्स हैं, वी डोंट केयर, आप दे सकते हो एंड यू विल गेट गुड नंबर्स, ठीक है। ओके, लेट्स लुक हियर।
मैं अपने आप को तो देखूं, ये कैमरा गायब हो गया था। ओके राइट, अच्छा जी, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा इस केस पे चलते हैं, बात करते हैं, सही? ओके हाँ 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 ओके, there you go, question, yes it's here, सही है। द फर्स्ट पेज मैंने अभी आपसे कहा कि देखो कितनी सारी चीजें इसने बताई कि फाउंडेड 20 years ago, you get an idea about the culture and everything, कि भाई experienced है, a firm of information technology consultant, सही है ना? Yes, what how did they start, उसके बारे में इन्होंने बताया, और देखो साइज पता चल गया, it currently employs 75. I hope you have the question paper. I cannot share my screen, सही है ना? मैंने आपको 2 स्क्रीन शेयर की हुई, ये मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे सामने भी क्वेश्चन पेपर है। Since establishment, देखो ना 75 स्टाफ मेंबर, फिर उसके बाद yes, what is their strength point उन्होंने बता दिया कि हमारी सक्सेस किस पे है। फिर the 4 consultant who initially founded, it's about the organization structure, क्या आपको पता चल गया कि what sort of board they have, सही है ना? उनका किस किस्म का बोर्ड है, मैनेजमेंट बोर्ड है, देखो ना एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बोर्ड है कि जिसके अंदर जो बंदे हैं they not only part of the board, they are part of the organization management as well, सही है ना? ओरिजिनल फाउंडर, और वो किस तरह लीड कर रहे हैं। Then below board level there is what operational staff and teams and all that. 2 years ago अभी मैंने बात की थी about the stock market and growth thing. Then what the CEO believe, सही है, that okay internal transformation, दिमाग में change आ गया, सही है ना? यानी they're not talking about any incremental change. They, in this case you'll be talking about some transformational, some big changes. They're going to transformation in order to be able to retain current clients and deliver the expansion, मैंने कहा ना growth, expansion, requirement to obtain a full listing. She believes that the company's current structures are now insufficient. इसका obviously आप लोग एक चीज चेंज मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो कि जब भी आपने whenever there is a change in strategy, whenever there is a change in size, मैकेंजी का जो 7S मॉडल है, जब भी साइज में और कोई स्ट्रेटजी में चेंज आएगा, it requires an appropriate structure, सही है ना? वो देखो ना, let's talk about Emirates of 5-star airlines, सही है ना? The existing organization structure is good, suitable for this current status and current strategy, जो कि differentiation strategy है ना Emirates की। अगर यही एयरलाइन, if it goes to the transformation thing and goes to the, it becomes a budget airline or something, अगर ये बजट एयरलाइन हो जाए, then what will happen? ये बजट एयरलाइन हुई और इसके बजट एयरलाइन होते ही this structure would be useless. Now you need a different structure which actually support this particular strategy. इसी तरह जो CEO आज इसको चला रहा है वो एक differentiation strategy का माहिर है, अगर आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, you need a different CEO, different staff, यही बात। तो देखो यहाँ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, and what did she say? The CEO believes, and that's perfectly fine, okay, if you bringing a change, especially a transformation change in the organization, I'm not talking about incremental change, a big change. When you talk about the transformational change, you need a totally different strategy and a structure to achieve that particular objective. ठीक है, दिमाग में घंटी बजाएं इसकी। TT4 ये बोर्ड पे मैंने बात कर दी कि they actually hiring you. Let's look at the requirement. The case requirements are included in the task below. अच्छा, मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में केस। First page, then requirement, you get a direction, and then go to detail things. सही है ना? और घबराना नहीं है, डिटेल से बहुत अच्छी चीज है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो अच्छा है ना? The more information you have, the more you can link. आपका एग्जामिनर क्या कहता है? इस दफा ऐसे नहीं परेशान होना, ये वो पेपर नहीं है पुराने जमाने के ट्रेडिशनल पेपर और लाइक अदर इवन द मॉडर्न पेपर्स एंड अदर पेपर्स कि यार वो पहली रिक्वायरमेंट में जो बातें लिखती वो दूसरी रिक्वायरमेंट में नहीं लिख सकते। नो, यू कैन रिपीट इट इफ इट इज रेलेवेंट। आप एक ही बात को 3 रिक्वायरमेंट में भी लिख सकते हैं अगर वो रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे आज मेरी अपने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, आई एम अ कंसल्टेंट, आई हैव अ क्लाइंट, उसके साथ मैं बातें कर रहा हूँ, मैंने उसको एक एडवाइस दी जिससे maybe the communication problem in the organization will be solved. See, that's my first advice. just थोड़ी देर बाद हम बात करते करते कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे आए, नेगोशिएशन पे, मैंने फिर वही एडवाइस उसको वापस दी एक दफा। आई कैन, ऐसा थोड़ी होता है कि when you start meeting, hello Mr. A, please come in, okay, whatever I say today I'm not going to repeat it. No sir, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि मैं जो आज बात कर रहा हूँ मैं रिपीट नहीं कर सकता। मैं इस क्लास के अंदर ही कितनी बातें रिपीट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ,
सेम केस, इट्स अ प्रोफेशनल पेपर, एग्जामिनर आपका कह रहा है, यू कैन रिपीट, सही है ना, इफ इट इज रेलिवेंट, जरूरी नहीं कि वो बार बार रिपीट करे। ओके, लेट्स लुक हियर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और ये बात भी दिमाग में रखें, यू हैव प्रोफेशनल मार्क्स, उसको जरूर दिमाग में रखना है, और मैं अभी बात करता हूँ उसमें। TT4U, अब जरा सोचें, अगर इफ यू आर नॉट डन विद योर फर्स्ट पेज और आप डायरेक्ट शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट, TT4U, सबसे पहले तो ये सोचते हैं भाई TT4U है क्या, आपको यही नहीं पता कि इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ नेम ऑफ द कंपनी। TT4U चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज कंसर्न। मजे की बात ये है, अभी जैसे ही हमने देखा ना TT4U चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपके दिमाग में पूरा फर्स्ट पेज आ गया, यार इसका CEO एक महिला है, खातून है, और उसकी क्या सोच है, और वो किस ग्रोथ पे बात कर रही है, किस तरह उसने एक कंसल्टेंट को भी हायर किया, सब कुछ दिमाग में आ गया। अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी वन और रिन्यूड, यस, ओके। तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स अबाउट द बोर्ड व्हिच एनालाइज द मेन रिस्क। ऑसम, क्या करना है? इजी होकर सोचें आप, whatever the instruction word is, I don't care, मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि मुझे रिस्क ढूंढने, मुझे रिस्क ढूंढने, कौन से? वो रिस्क ढूंढने which threatens TT4U being awarded new contracts and retaining current। मुझे अपने कॉलेज के वो रिस्क ढूंढने which may affect my existing students, that they may lose it, that I may lose those clients, those students, and they'll be switching over to my competitors। और मुझे वो रिस्क भी ढूंढने जो मुझे अपने नए क्लाइंट से दूर करे, ठीक है, यानी we actually talking about the business risk which actually affecting your revenue, financial numbers। कितना आसान दिमाग में आ गया कि यार उन रिस्क पे बात करनी। ओके, ऑब्वियसली केस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस किस्म के रिस्क हैं। हो सकता है कंपनी इतनी इनोवेटिव ना हो सकता है they have some internal control weaknesses, maybe they are not technologically sufficient, although they are offering technology services, but sometime it happens, सही ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखो, जब इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे ना, तो देखो क्या लिखा, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, पता है क्या, जब आप लिख रहे हो ना सवाल, तो दिमाग में घंटी होनी चाहिए कि मुझे प्रोफेशनल मार्क्स किस चीज के मिलेंगे। Will I able to get the professional marks in this requirement for commercial acumen, or about the skepticism skill, or they are going to evaluate my communication skill? तो अगर कम्युनिकेशन स्किल के मार्क्स हैं, तो सॉल्व करते हुए दिमाग में घंटी होनी चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा परसुएसिव आर्गुमेंट डालने, मुझे अपनी कम्युनिकेशन, अपनी टोन, अपने जार्गन्स, I'm talking to the board of directors or I'm talking to a common man, a layman, or shareholder meeting, what I'm doing, क्योंकि I'll be getting extra free marks जो मुझे 40% पास कराएंगे, क्योंकि आपको 20 मार्क्स मिलते हैं प्रोफेशनल के, 20 का 50 में कितना रोल है? If you want to get just 50 marks, what is the role of 20? 40%। 40% पास तुम ले लेते हो प्रोफेशनल मार्क्स से, that's it। प्रोफेशनल मार्क्स कैसे मिलेंगे? दिमाग में ये चलता रहना चाहिए हर वक्त, जब when you are writing that particular requirement, that in this requirement I'll be getting professional marks just by my arguments। if क्या पूछे गए? कम्युनिकेशन के, इस रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है, सही है ना। अगर पूछे गए स्केप्टिसिज्म के मार्क्स, तो इसका मतलब अ डाउटफुल एटीट्यूड, इसका मतलब अब मुझे कम्युनिकेशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाँ मुझे आंसर तो लिखना है, उतनी कम्युनिकेशन तो करनी है, बट दिस टाइम आई विल बी गेटिंग फ्री मार्क्स, फ्री कैश मार्क्स, फ्री डिविडेंड मुझे मिलेगा जस्ट बाय माय एटीट्यूड। आई हैव टू शो माय एटीट्यूड ऑफ डाउटफुलनेस, कि मैं किसी बात पे यकीन ना कर लूं, जो नजर आ रहा है मे बी इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स 180 डिग्री डिफरेंट ऑन द अदर साइड, तो मुझे जरा डाउटफुल होने के एटीट्यूड के सिर्फ मार्क्स मिलेंगे। टेक्निकल मार्क्स अलग है, मुझे डाउटफुल एटीट्यूड के मार्क्स अलग मिलेंगे। इफ in the examination you're asked in that particular requirement, if you ask skepticism skill, if you're asked to write acumen skill, commercial acumen, जिसको हम business acumen कहते हैं, इस दफा मुझे मार्क्स तब मिलेंगे जब मुझे environment की अंडरस्टैंडिंग, जब मेरे पास में सीधे लफ्जों में पता क्या बोलूं, बिजनेस सेंस होगा। और यकीनन ये वो मार्क्स हैं जिसके लिए आपको आपका दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह चलता है। मिसाल के तौर पे आज आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, व्हाटएवर, और आप मुझसे बात करें, सर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करनी है, व्हाट टू डू, और हम बातें शुरू करें, यार हाउ अबाउट, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाउ अबाउट वी स्टार्ट अ गैस स्टेशन, और मैं बोलूं यार इधर तो टेस्ला रोड पे नजर आ रही है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स दबा के, तो अब गैस स्टेशन में दम होगा। बोले यार हाउ अबाउट वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टेशन, एक इलेक्ट्रिक स्टेशन बना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। मैं बोलूं यार मैं कल टेस्ला के शोरूम गया था और मैंने देखा जो गाड़ियों के साथ चार्जर मिल रहे हैं $500, कि अब आप अपनी गाड़ी को ऐसे चार्ज करें जो कि टेस्ला चार्ज होती है घर में, जस्ट लाइक अ सेल फोन। तो वो जो गैस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन बनाना भी शायद दिमाग में नहीं आता इस वक्त,
क्योंकि ये प्रोडक्ट आ गई है घर के अंदर, इन जस्ट $500 यू कैन चार्ज योर ओन थिंग, दैट्स इट। इससे भी आगे चली गई ये टेस्ला, वो तो कहती है इन सब की भी जरूरत नहीं, उसने तो ऐसी रूफ बना ली है जिससे they get solar energy and your car is automatically charged once you park in your garage, that's it. Commercial acumen, business acumen, environmental knowledge, business sense, मेमन का दिमाग, that's it. तो इसी तरह एनालिसिस स्किल, किस तरह आप अपने एनालिटिकल स्किल यूज करते हो, जैसे इसके अंदर इसने बोला प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल्स, कि आप जिस चीज पे बात कर रहे हो उसका ब्रेकअप कैसे करते हो एंड हाउ यू क्रिएट अ लिंक। जैसे अगर एक रिस्क है, अभी रिस्क की बात है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, दे जस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क, यू गेट अ जीरो, यू गेट नथिंग। अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई कर दिया, आपको रिस्क के इम्पैक्ट, देखो ये एनालिसिस कि कितना इन डेप्थ आप जा सकते हो, इन डेप्थ क्या, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिस्क, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, यानी और इस रिस्क का रिलेशन दूसरे रिस्क के साथ क्या बनेगा। लेट्स से इफ इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स हाउ इट्स गोना अफेक्ट द बिजनेस रिस्क, हाउ इट्स गोना अफेक्ट द ऑडिट रिस्क। फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट का पेपर हो, ये जो लिंकेज क्रिएट करना और एक एक कंपोनेंट की डेप्थ में जाना, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस स्किल्स। सही है ना, कि आपको अपना एनालिटिकल माइंड क्या है यार, ये कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, लेट्स लुक हियर, रिक्वायरमेंट बी, prepare a section of your report which evaluates two strategic option। इसका मतलब डायरेक्टर्स ने, कोई ग्रोथ की बात है ना, तो दो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दिए होंगे, मैंने तो खैर केस पढ़ा। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इनके ये हैं, वन इज के दे लुकिंग फॉर वन न्यू कस्टमर, अ बिग कस्टमर व्हिच इज अ गवर्नमेंट, कि हमारा जो इदारा है, राइट नाउ वी डूइंग सर्विसेज टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, हाउ अबाउट वी गिव सर्विस टू द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को हायर कर ले, गवर्नमेंट को हम अपना कस्टमर बना लें। तो यकीनन उसकी डिटेल पर आगे दी होगी। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि मतलब अभी जो, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि वो एरियाज व्हिच आर स्टिल अनटचेबल, कि अभी तक आपने उनको टच नहीं किया, and you can connect those areas with tech, with app, with internet। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, बल्कि मैं आपको जाके देख भी सकते हैं, मुझे बल्कि ये बात फेसबुक पे भी लिखनी भी है। मैंने 2019 में एक वीडियो बनाई थी अपने घर की, बिकॉज माई हाउस इज अ स्मार्ट हाउस। मैंने अपने घर की एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपने घर की एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये पॉसिबल है कि एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए। मार्च 2020 के अंदर ये बात उसने पूछ ली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो क्या है। थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर बाकी आंसर में करेंगे। मिसाल के तौर पे, आई लिव इन डैलस, मैं रहता डैलस में, मैं गया हूँ शिकागो, या मे बी आई गो टू कनाडा। मेरे घर का गार्डन को पानी कौन देगा, वी डोंट हैव माली हियर, हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होता जो पानी दे, लेकिन मेरे पास अब बैकयार्ड फ्रंट यार्ड सब है, क्या करूँ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कि मैं अपने मोबाइल से अपने पूरे, और हम लोग इसी तरह देते हैं पानी, हमारे यहाँ सारे वो कनेक्टर लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर्स, हर जगह जगह स्प्रिंकलर्स बिल्डर की तरफ से लगे हुए, जो जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो उठते हैं, और हर जगह साइंटिफिकली सेट हुए में, इंजीनियरिंग से सेट हुए में, कि पूरे गार्डन को पानी देते, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, आगे बहुत बड़ा गार्डन है, सब कुछ हमें मेंटेन करना है, लीगल ऑब्लिगेशन, सही ना। तो अब पता ही चला कि इतने बड़े गार्डन को मेंटेन कैसे करो, तो ये टेक्सास में तो हमारी कम्युनिटी में तो जो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बड़े बड़े गार्डन, तो उसको पानी थोड़ी देते रहे, बगैर पानी के नॉट गोना वर्क। तो क्या होता है, अब यहाँ तो है कि बटन है, बटन लगाया, वो उठते हैं, टाइमर होता है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट व्हाटएवर, और वो सबको पानी देके इजी हो जाता है, ठीक है। How about if I'm not living here, let's say for next 2 weeks, and I'm in Chicago or I'm in Canada somewhere, there is an app which this whole system is connected with internet and with app thing। ये है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि मैंने उसको कनेक्ट किया, एक ऐसी ऐप उन्होंने मुझे बना के दे दी, उस ऐप का नाम है बर्ड रेन और समथिंग, और वो ऐप जो है उससे मैं अपने पूरे गार्डन को पानी दे सकता हूँ वहां बैठ के। मैं क्लिक करूंगा, ये इंटरनेट ऑफ थिंग, ये कनेक्ट होगा मेरे इस वाईफाई के साथ, ये मुझे बता देगा कि हाँ भाई 2 मिनट 3 मिनट AM PM व्हेनेवर आई वांट, आई कैन वाटर माय प्लांट्स एंड माय गार्डन एंड एवरीथिंग, सही है ना। अच्छा, हो सकता है आज बारिश हुई हो, फिर क्या, फिर ये खुद ही वर्क नहीं करेगा। इसी तरह मैं इसको ऑटो पे भी लगा सकता हूँ, इसके बाद सेंस होता है कि आज ऑलरेडी पानी इतना आ गया है, तो आज मुझे नहीं चलना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चलती रही, तो ये कहलाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे गोइंग टू एक्चुअली दे टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा, ऐसी और बहुत सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आई टॉक इन दी व्हेन विल बी डूइंग द आंसर, सही है, उसमें हम बात करेंगे।
लेकिन मैंने इस पर वीडियो बनाई थी 2019 में बनाई थी, केस आ गया 2020, आ सकता है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, नजर रखने की बहुत जरूरत है। Okay, इसका मतलब when they talking about the growth strategy, they have two options. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 प्रपोजल दिए हुए, तो अब आपके दिमाग में देखो एक डायरेक्शन आ गया कि मुझे इस दफा, और देखना इसमें मैं आपको बता दूं इवैल्यूएशन की वो बात करेगा, क्योंकि जब भी वो ऐसी बात करेगा ना, let's say we going to a new country, let's say we talk about a growth, market penetration, product development, market development, diversification strategy, whatever, अमूमन उसमें इवैल्यूएशन स्किल्स की बात होगी। ये देखो यही कह दिया उसने कि इवैल्यूएट भी और प्रोफेशनल मार्क्स भी किसके दे रहा हूँ, इवैल्यूएशन स्किल्स के। और इवैल्यूएशन स्किल्स में आपको क्या करना होता है, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, यानी एक्सपर्ट जजमेंट, असेसमेंट, एक्सपर्ट असेसमेंट। और एक्सपर्ट असेसमेंट कैसे होता है, लुकिंग एट द मेरिट्स, लुकिंग एट द डीमेरिट्स। मेरिट्स को देखना है, डीमेरिट्स को देखना है, बात समझ रहे हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स, इन सारी चीजों को देखने के बाद अल्टीमेटली आपको अपना असेसमेंट, अपना जजमेंट, एक जजमेंट देना होता है कि हाँ यार मेरे पास आई हैव 2 प्रपोजल, तो उनकी डेप्थ में जाके और उनको फिर इवैल्यूएट करना है, अगर कोई एनपीवी आईआरआर व्हाटएवर, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सी रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल ईमेल फॉर द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आपने एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल लिखनी है, इट मींस इट्स नॉट अ पब्लिक लेटर, तो ये बात भी दिमाग में रहे, सही। अब जब ईमेल लिखनी है तो कहीं ना कहीं आपके जो स्किल वो यूज करवाएगा, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल यूज कराए। लेट्स सी, एडवाइज ऑन द एक्शंस which TT4U can take to ensure that the controls on the confidentiality of data operate effectively. आप CEO को ये बात लिखेंगे कि okay, already we have what? We have the controls in place, but are those controls effective? Are they achieving the objective? तो क्या, which advice? यानी how can you ensure control testing? सीधे लफ्जों में control testing. It means the controls are there. और उसके साथ साथ उसी ईमेल में आपने बात करनी है, discuss the risk and ethical issues relating to communicating the threat to client Rex investment. पहले पेज पे भी ये बात हुई हुई थी, अभी भी आपके दिमाग में आ गई कि यकीनन कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो रहा है, एंड यू हैव दिस बिग क्लाइंट Rex इन्वेस्टमेंट, उसके साथ कोई इश्यू चल रहा है, वेदर टू कम्युनिकेट, यानी इसका मतलब आपको एंटर करेगा वो डिसीजन मेकिंग में भी, आपको बनाएगा एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एंड यू नीड टू डिसाइड वेदर टू डिस्क्लोज और नॉट। ऐसी कुछ बात भी आने वाली है जो आगे देख के आपको पता चलेगा अबाउट द Rex इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मेजर क्लाइंट। प्रोफेशनल मार्क्स किसके हैं, सॉरी कम्युनिकेशन के लिए, माय मिस्टेक, मैंने अभी पढ़ा स्केप्टिसिज्म स्किल क्या, कंट्रोल मौजूद है, यू टेलिंग टू CEO ओके द कंट्रोल्स वुड बी देयर बट नॉट नेसेसरी द कंट्रोल्स आर वर्किंग। यानी आपको इस दफा अपना डाउटफुल एटीट्यूड रखना होगा कि व्हाटएवर यू लुकिंग एट इट यू मे चैलेंज इट। हाँ, हर चीज पे आप, यानी आप भोले भाले नहीं होगे, यू ट्रस्ट इट। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी अगर आपका पूरा टेक्निकल जवाब जो है इट इज फाइन, परफेक्टली ऑसम, ऑल आर्गुमेंट्स आर लॉजिकल, फाइन, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी बातों में उसको ये नजर आया ना कि यू ट्रस्टिंग ऑल द कंट्रोल्स, यू ट्रस्टिंग एवरीथिंग, व्हाटएवर दे से, should we disclose it or not? We should disclose it. यानी आप कोई दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हो, आप डाउटफुल एटीट्यूड से चल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आप तो एक भोले भाले कंसल्टेंट हो, एक भोले भाले ऑडिटर हो। ऑलरेडी आप स्केप्टिसिज्म स्किल तो अपने ऑडिट के पेपर में भी देखते हो ना कि डोंट अज्यूम पीपल एज ऑनेस्ट एंड डू नॉट अज्यूम देम एज डिसऑनेस्ट। आपको एक क्रिटिकल और क्वेश्चनिंग माइंड से चलना है। लेट्स लुक हियर। थर्ड, prepare a section of your report which critically evaluate positive, negative, the investment appraisal produced, very simple, F9 P4, कि आपके सामने पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, प्रोजेक्ट, पेबैक, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एनपीवी, आईआरआर, ऑल दैट, और उसको आपने इवैल्यूएट करना है। मार्क्स किस चीज के, वंस अगेन स्केप्टिसिज्म स्किल्स के, प्रोफेशनल मार्क्स, स्केप्टिसिज्म स्किल। ठीक है, तुम मुझे कह रहे हो कि these would be the cash flows, these are the costs, this is the interest rate, this is the sensitivity analysis, this is the payback stage, that's the positive NPV we're getting. I cannot trust all these numbers, I cannot trust all these assumptions. आपको पता है ना, ये इस तरह होता है ना कि पूरा चार्ट बना देते हैं और नीचे वो आपको बताते हैं कि the cash flow figures we got it by these assumptions, the cost based on these assumptions, the falana thing based on these economic indicators, these external factors, whatever. I cannot trust. I have to have a questioning mind. ठीक है, then prepare briefing notes for the next board meeting which recommend how e-marketing can be used to attract
ओके यानी अब आपको टू रिटेन क्लाइंट्स, यानी असल में पहली रिक्वायरमेंट में भी मसला क्या था, दे आर वरीड, दिस कंपनी इज वरीड अबाउट द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, दे हैव प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड दे आर वेरी मच स्कैर्ड अबाउट गेटिंग द न्यू क्लाइंट। अब आपको कह रहा है कि how about we do e-marketing, you think it's going to help us? I don't know, ये आपको बताना है, लेकिन इसमें बात क्या होगी, commercial acumen, commercial acumen. Think about this particular product, think about their client, think about the industry, keep in mind the principles of e-marketing, the benefit of e-marketing, how e-marketing works, and then talk about commercial acumen skill. ऐसा नहीं कि जी एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए जहां पर जी 4 मिनट की वीडियो के लिए 4 घंटे पहले बफिंग होती है, and you talk about how about we do e-marketing and we give this much investment. What sir? क्या बात कर रहे हो? It means you lack commercial acumen. Your logic is good. E-marketing के benefits सब आपने अच्छे बताए, लेकिन आपको environmental knowledge नहीं है कि आप किस मुल्क में रह के बात कर रहे हो, किस particular industry के लिए आप बात कर रहे हो e-marketing की. Think of commercial acumen, business acumen, business sense, good business sense. Let's look here. Prepare an email. Cell phone, hell phone. Prepare an email for the Chief Executive Officer, which advises her on the responsibilities and activities involved in preparing for and implementing the transformation of TT for you effectively. शुरू में ही बात हुई है, they are going for a big change, not an incremental change, transformation change. आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है भाई कि आपने क्या करना है, आपने करना ये है, let's look here, hold on. आपने करना ये है कि you write an email to the CEO, उसको बता दो कि okay, this was your dream to bring a transformational change, but let me tell you, when you are the executive head, you are the person, you are a lady in power in position, what are your responsibilities in introducing the change? यही बोला ना, advisor on the responsibilities and activities involved in preparing for and implementing. ये जो इतना बड़ा चेंज लाने की तुम बात कर रही हो मोहतरमा, for its preparation, managing stakeholder, and finally implementation. These are your responsibility and your duties and your job to do that. Okay. Now, one more thing. Prepare a letter to all the employees, which will be signed by CEO. इसका मतलब अब आपको acting CEO बन के बात करनी है कि in the requirement B, actually you are a consultant. Okay, you're a consultant, you're a student, whatever. This is your job because you getting paid for it. लेकिन आपने एक ऐसा लेटर लिखना है जो यूं लगे कि the CEO is talking to the employees. देखो इस यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट क्या है? First of all, you talk to CEO. Okay, hey, Miss CEO, these are your responsibilities and duty when you talk about the change. दूसरा आपने ये लिखना है लेटर जिसमें आप खिताब करोगे एम्प्लॉइज से. Think about it. You're not talking to the C-suite. You're not talking to the board of directors now. You talking to a basic baby employees. आप छोटे employees से बात करो. They're immature. Their needs are different. Maybe they're not that innovative. They're not creative. They talk about the salary. यानी आप दिमाग में रखो कि आप उस तबके से बात करो. And that तबका has to bring a change. यानी असल में change उन पे impose होने वाला है. ठीक है, क्या बताओगे उनको? The benefits of implementing the new Neobad approach. उनको बताओगे. Okay, guys, we're bringing a change in your organization and you are my partners, you are my players. अब ये इस तरह की बातें करनी है. You are some employees. ठीक है, आपको उनको अप्रोच बतानी है कि भाई किस तरीके से बेनिफिट्स बताने उस इस चेंज के. आपको पता है चेंज मैनेजमेंट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये जरूर बात करता हूँ. If you want to bring a good change, if you want to bring an effective change, if you want to bring an effective change and the change which achieve the objective, tell them the benefit. Don't tell them the negative side of the change. Everybody will say, no, we don't want to do it. आप उनको positive side बताओ and they'll say, yes, we are in. सही है ना? आप उनको involve करो, they are in. We'll talk about in the paper. सही है ना? The benefits of implementing the new, इनको benefit बताने इसके, and the main changes to team structure and behavior. और उनको ये भी बताना है कि okay, when we are going to bringing this big change with you as a partner, as employees as a partner, or awesome employees, this sort of behavior is demanded. This sort of structure is demanded कि हमें इस तरह के changes लाने होंगे और इस तरह का behavior हमें चाहिए. देखो इसके अंदर उसने professional marks किस चीज के दिए? Communication skills. You'll have to be more persuasive, more motivating.
हाँ, जबरदस्त आर्ग्यूमेंट देने, जबरदस्त एडजेक्टिव यूज करने, जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करना उनको। हाँ, आप एक सीईओ के साइन हुए हुए नीचे, यानी यू एक्चुअली द सीईओ एंड यू a person, you head of the organization and you actually trying to motivate and persuade the team। खुल के खेलो इसमें, और यूं समझो कि आपको अपने बच्चों को मनवाना है, बात अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, उनको मनवाना है, शादी के लिए अपने मनवाना है, क्या कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट लाते, this how about this, I'll do that, कितना persuading, you have to be very persuading, get 3 marks, free dividend। Preparing briefing notes which advise the board। Now you're talking to the C position। अब employee से बात खत्म हो गई, that's the next requirement। Prepare briefing notes which advise the board on the changes required to the membership of the board। पटक पटक इस मिनिस्टर को निकालेंगे, नया मिनिस्टर लाएंगे, maybe we need more NEDs, non-executive director, we need to have this, maybe I'll switch you service director to this guy, maybe I'll be changing your responsibility। First of all, membership of the board, अगर हम उसमें change लाएं, and the information supplied to the board। अभी अगर हमें information, let's say we're just getting from the external sources, just from the audit committee, maybe in future we're getting from the internal audit department, from any exceptional reporting channel, whatever information supplied to the board, इससे फायदा हमें क्या होगा, to reflect TT4U's developing business need and to make TT4U more responsive to its client need। ठीक है, यानी अब आपने एक नोट बनाना है और इनको बताना है, एडवाइस टू द बोर्ड कि भाई ये चेंजेस होंगी, मेंबरशिप चेंज, पटक पटक, and the information supplied to the board, it will get timely and good information and reliable information to reflect TT4U's developing business need। This is actually the demand of the time for our product and our industry, and how we'll be more responsive to satisfy our customer। यहाँ पर प्रोफेशनल मार्क्स किसके मिलेंगे, कमर्शियल एक्यूमेंट के, कमर्शियल एक्यूमेंट के, यानी कैसा, साउंड बिजनेस नॉलेज। क्या आपको पता हो गया है, इस बंदे को लाने से, इस चेंज करने से, इस मेंबरशिप के चेंज करने से, getting this information will help us in bringing good numbers। Okay, that's requirement part हमारा डन। अब आ जाए डिटेल जो आपका केस है, ठीक है, डिटेल केस में मैं आपके साथ वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा। एग्जिबिट 1 पेज 1 पे लिखा हुआ था, इट्स अबाउट द डायरेक्टर्स मीटिंग। बड़ा अहम है ये डायरेक्टर्स मीटिंग। सीईओ अपने कंसर्न आपको बताएगा, सबको बताएगा, ओके आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर कंसल्टेंट, वी टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, फलाना। देखो ना, ये सारी इसने बात की है कि हमारे इन्वेस्टर्स दे टॉक अबाउट टेकिंग अस टू द स्टॉक एक्सचेंज, दे व्हाट दे वांट। स्टब फील्ड कंसल्टेंट पे बात कर दी। वी हैव एडवांस डिस्कशन ऑन डेवलपिंग अ न्यू क्लाउड बेस्ड सर्विस जिस पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हुआ हुआ है, सही है ना, दिस विल एनेबल अस टू डू दिस। फिर फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा, ओके आई वाज ऑन सिक लीव और मैंने अभी तक, माय असिस्टेंट हैज प्रिपेयर्ड द लास्ट थिंग, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है मेरे असिस्टेंट ने बनाया, आई हैव नॉट सीन येट, मैं उसको देखूंगा, और ये वो सारी बात, ठीक है। फिर मार्केटिंग डायरेक्टर कह रहा है कि हाँ ठीक है, आई हैड होप टू कम टुडे विद सम प्रपोजल फॉर मार्केटिंग द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, हाउएवर आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद रेक्स इन्वेस्टमेंट। वही देखो, बार बार इस क्लाइंट का नाम आ रहा है, रेक्स का, ठीक है ना, कि रेक्स इन्वेस्टमेंट, इसके साथ मैं आजकल बहुत बिजी हूं एंड व्हाटएवर। फिर सीईओ ने कहा, एज यू रिमेंबर आई आस्क्ड फॉर सजेशन फ्रॉम योरसेल्फ अबाउट एरियाज वेयर वी कैन एक्सपेंड। वही वाली बात, गवर्नमेंट की तरफ चले जाए और मे बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन द आईटी डायरेक्टर, उसने अपने कंसर्न शो कर दिए कि वी नीड टू लुक बियॉन्ड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड एक्सपैंड इन एन एरिया, है ना, इसने भी ग्रोथ वाली बात की सारी। फिर सर्विस डायरेक्टर कह रहा है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन विनिंग। डिबेट चल रही है, वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे कह रहा है, कनेक्टिविटी उस पे बात कर रहा है, ये ज्यादा कह रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर इसको हम पकड़ते हैं। फिर सीईओ ने कहा, नाउ आई वुड लाइक अस टू कंसीडर द इश्यूज रेज्ड बाय रीसेंट क्लाइंट सर्वे। फर्स्ट पेज पे हमने देखा था कि दे हैड अ क्लाइंट सर्वे एंड दे गॉट फीडबैक। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि क्लाइंट सर्वे में क्या हुआ है, इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या कहते हैं, और यकीनन दिमाग में घंटी है कि बुरी बातें की होंगी, तभी तो परेशान है, तभी तो दे टॉक अबाउट द रिस्क कि किन रिस्क की वजह से मे बी विल लूज आवर क्लाइंट, ठीक है ना, और आपको तभी तो हायर किया इन्होंने। Highlight the need to transform as the business and all that. I intend that we should move forward by adopting NeoBet, Tomorrow Magazine, Business Tomorrow Magazine. SD, Service Director क्या कह रहा है, as you will be considering how staff should be persuaded about the change thing. CEO, I shall also be looking to how we operate as a board about the corporate governance thing, board membership. I certainly agree internal communication could be improved, okay.
I think we need to go much further. One-off client survey and all that. Okay, and thank you for the contribution. That's the board meeting. आपने उसको detail देखना होगा. Exhibit 2 is about the Miobed. मैंने आपसे कहा ना कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि Miobed आपने पढ़ाया नहीं. वो Miobed भाई निम्नलिखित है. अगर यहाँ सही तरह देखें. Summary of Miobed client approach devised by Business Tomorrow magazine. It's an independent magazine, separate external communication. एक magazine है जिसने ये एक model बना के दे दिया, एक approach बना के दे दी कि the organization should be mission driven, should be interactive and giving empowering, enabling client stakeholder to realize personal and organizational potential, should be open, boundaryless, ethical, data focused. So इसको उसने एक mnemonic किया Miobed. Okay. Now this is the blog, Exhibit 3. This is the blog जो किसने लिखा है? Business Tomorrow magazine है. यानी ये blog इतना important है for this particular industry and for this particular organization TT4U कि इन्होंने अपनी board meeting में इस पर बात की कि look where the industry is going, where what actually the clients, not our client, what the market is looking for. हाँ कि market क्या कहती है? How can IT consultant stand out? देखो इसमें सारी बात की is leading innovation in cloud based services और इसी पे ये लोग भी बात कर रहे हैं. This is their product. Is the Internet of Things an area firm can develop? और Internet of Things का मतलब भी मैंने आपको बताया. Is client service still important? What business is available for firms providing top class service? यानी ये एक बिजनेस आर्टिकल है जिसने सारी बातें की हैं कि where not only for TT4U, it's for the whole industry कि what the client is expecting, where they should go, what is the future of Internet of Things, what is the future of cloud based services and all that. फिर उसके likes दिखाएं, उसके dislikes दिखाएं, comments दिखाएं. बंदों के नाम इसमें important नहीं है, सही है ना. और ये मैगजीन किसने लिखा है? by Abby. That's not important. It's just to give you a professional look, सही है ना. But yes, Business Tomorrow की term आपने use करनी है about the blog, you know, in the answer. Then client survey. ये client survey किसका है? This is not an industry survey. ये survey client का, existing customers का. क्या है? जैसे अगर देखें service provision flexibility excellent है, kids 17% ने कहा good 56% and all that. About the innovation कि क्या TT4U जो ये कंपनी है is it innovative company, तो उसके बारे में लोगों ने क्या कहा है, क्या percentage survey. Information provision, हाँ कि इनकी जो Facebook page और website और इनके blogs और ये सारी चीजें हैं. How is their staff in terms of knowledge, in terms of responsiveness. देखो लिखा है ना emails are never answered the same day. तो ये सारे problems अब आपको पूरा पढ़ना होगा डिटेल. तो when you actually solving the paper आपके दिमाग में होना चाहिए yes, so that you can link it कि okay 57% of the client says this, 17% says this or whatever. ठीक है. Proactiveness and all that. Exhibit 5. Once again a board meeting. देखो दो board meeting हुई. एक board meeting कब हुई? जनरल, जिसमें सारी बातें इन्होंने की. What the marketing director, service director जो भी हमने देखी. ये दूसरी board meeting है. Special discussion of threatening letter about TT4U largest client Rex investment. हुआ क्या है? IT director कह रहा है we got an anonymous threat to reveal confidential data on Rex investment unless we pay $20,000. Damn. 20 grand. भाई ये मांग रहे हैं आपसे, आपको ऐसी कॉल आ गई, तुम्हारी तस्वीरें लीक कर दूंगा, तुम्हारी सारी स्क्रीनशॉट है वो बहुत जल्दी लीक हो जाएंगे मार्केट में. Give me 20,000. Otherwise I'm gonna leak it. यानी आपके साथ भी ये हुआ. You actually providing services to Rex investment और आपको एक अचानक कॉल आती है क्योंकि when you providing services to Rex investment, you actually sharing data. You have client data actually. That's why you providing the services and you have access to client information and client services and client systems and all that. और आपको कोई third party कॉल करती है कि मैंने तुम्हारे सारे छप्पड़ कर लिए and I'll be reveal it. And once it goes public, whatever, let's say you are an auditor or whatever, अगर मैं इसको public कर दूं, your audit firm will collapse, your IT firm will collapse. यानी कितनी market में बदनामी होगी. Give me 20,000 and I'll keep myself shut. अब इस पे marketing director का अपना कहना है कुछ नहीं होता. वही it's a debate going on. आप पढ़िएगा पूरा. एक कहता है नहीं यार हमारी तरफ से नहीं हुआ होगा. Maybe उधर से data leak हो गया. It's not necessarily we are responsible. Maybe the Rex investment, they lose it and their controls are being
we never know, सही है ना। तो इन सब का किसी ने कहा कि नहीं यार हमें रेक्स को बता देना चाहिए, कोई कह रहा है no, that's fine, better keep silent, कोई कह रहा है नहीं यार it's ethical or whatever, आप क्या सोचते हैं? You need to think it. Then the last is Exhibit 6. आपके सामने पूरा F9 या जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर कहते हो वो है, पूरा आपके सामने किस तरीके से इन्होंने एनपीवी कैलकुलेट की है, हाउ दे डिड द कंट्रीब्यूशन थिंग, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, क्या नेट कैश फ्लो होंगे, कैसे एनपीवी कैलकुलेट हुई है, व्हाटएवर। और उसके बाद उसने सब कुछ दिया। और आपसे मैंने कहा भी कि when you will be solving the requirement for this particular page, for this particular exhibit, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें प्रोफेशनल मार्क्स किसके हैं? स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड के। ये फिगर्स तो कोई भी लिख सकता है। I'm not a fool that I'm going to rely on these figures. Maybe these figures are right. What about the assumption? How did you get this $8,000 sale? The first thing. तो उसके पीछे जो assumption दी गई है, sales are based on expected increase in market, clients served and prices. Maybe the economic factors. Next year को ऐसा नजर में आता हो, maybe the existing client, maybe we are in highly competitive industry and we are not in the position to increase the price. What are our existing prices? दिमाग में घंटियां बजेंगी। Skepticism. एक तरफ आप देखें, कुछ बच्चे देखो मासूम होंगे इसमें, वो देखेंगे बोलेंगे yes, what is the NPV? 2051 discounted cash flows, अच्छा NPV आ रही है 3226, NPV आ रही है values 5 to 10 years, अच्छा इतनी आ रही है, payback ऐसे निकाला, यार ठीक लग रहा है बाजार, and they'll be doing their evaluation and everything, but they won't get professional marks. Even evaluation भी उनकी सही नहीं है अगर वो ये points नहीं रेस करते हैं, और अगर वो बिल्कुल ट्रस्ट कर लेते हैं तो प्रोफेशनल मार्क्स को तो forget it. सही है। तो this is all March 2020, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इट्स अ गुड पेपर, हेल्थी पेपर। लेटेस्ट पेपर को सॉल्व करने का मजा ये होता है कि आपको लेटेस्ट एग्जामिनर का ट्रेंड और टेस्ट पता चल जाता है कि कितना एग्रेसिव जा रहा है, what sort of challenges you have now, ठीक है ना। जितने पेपर पुराने होते थे although 19, 18 ये सब वर्क करते हैं, लेकिन if I talk about although ये तो पेपर ही नहीं था, 2003-4 के पेपर देखें, industry was totally different, especially for these papers. सही नहीं तो बिल्कुल ही ये तो मानते हैं कि फ्रेश टाइम चाहिए आपको, real time information. This was the question. In the next 2 meetings we'll talk about, I think I need 2 more meetings, सही ना। आंसर के लिए मुझे 2 मीटिंग चाहिए जिसमें we'll talk about how to solve it, ठीक है। फिर बहुत बड़ी बात क्या होती है, you understand the problem. Once you understand the problem, फिर प्रॉब्लम ही ना समझ आया तो जब तक समस्या ना समझ आए तो हाउ कैन यू गिव समाधान, सोल्यूशन कैसे दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज आस्क्ड, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाई यू डू इट, ये चीजें तो पहले पता हो, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन ये पता हो, देन ऑब्वियसली आई कैन रिस्पोंड, आई एम अ स्मार्ट गाय, यू स्मार्ट गाय, यू आर सम पीपल, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी फीडबैक, दैट वाज solely my opinion in sequence and doing this and all this, that was my opinion. If you have anything or कोई अच्छा आपका feedback है, or maybe you have any good point which we can add value, definitely let me know. सही है, अपना ख्याल रखें, thank you, have a great day now, thank you, bye.